हाँ जी. Yes, Akul. So we Ma'am, are yes. going to revise the next topic, partition of Bengal. But before that, briefly explain what we have discussed in this topic till now. Ma'am, we discussed that British rule was going on in India, and there were various laws made by them which dissatisfied people, such as number one, Arms Act, which was introduced in 1878, which disallowed Indians to keep weapons. Then there was Vernacular Press Act, which was introduced in the same year, which which stated that anyone who will be in critique of British government, will be sent to prison or be killed. And then there was Albert Ill. Then after this, there was a need for all India organizations, and in 1885, INC, Indian National Congress, was formed, which consisted of various leaders such as Radhabhai Nauroji, Firoz Shah Mehta, and there was also a retired British official, A.O. Hume, who played a major role in that. Then in Congress, in the starting decades of the making of Congress, there were two types of people, like moderates and radicals. Moderates were people who wanted non-violent means to protest against Britishers, and radicals such as Lal Bal Pal, uh, Lala Lajpat Rai, and Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. Okay, Akul. They were radicals. Yes, very good. Yes, now about the moderates and extremists. Okay, we have also discussed about some of the demands of moderates and what was the difference between moderates and extremists. Hanji. Yes, beta, who will explain the difference? What was the difference between moderates and extremists? And then briefly about the demands of moderates. Hanji, Anjani. Yes, beta. Hanji. Yes, ma'am, we have read that the moderates, they were believe in violence, and the radicals, they believe in violence. And the radicals, they criticize the moderates as the players of politics. And the moderates, they express the writing articles, newspapers, whereas radicals want that they should not just speak to the British for their independence. It is their right, so they should take it. Okay. Anjali, your voice was also not clear. Yes. Anyone else who could explain this difference between moderates and extremists? Anjali was voice was not much clear. Otherwise, she has explained. Hanji. Yes, beta. Hanji, Diya. Yes, Hanji, beta. Okay, Harmanpal, you may explain. Good afternoon, ma'am. Hanji, beta. Ma'am, extremists were completely against British rule and want complete independence. The modernists, on the other hand, wanted self-rule and greater autonomy and accepted nominal British rules. Yes, they have accepted their autonomy. And but what was the way of their making demands from Britishers? What methods they were using? What was their methods of demanding from Britishers? By making prayer and request. And what was their early objectives? Or early starting में उनके objectives जो थे, that was limited to which topics? कौन से topics पे उनकी demands थी? हाँ जी, their objectives, early moderates. पहले moderates थे, जो early leaders थे, ठीक है वो Ma'am, सारे sending petitions to the government officials. So इसमें इंडियनाइजेशन की जाए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की हाई पोस्ट उनको दी जाए,
देन ये सिविल सर्विसेज एग्जाम इंडिया में करवाए जाए, और प्रोविंशियल इलेक्शंस और एरिया को कवर किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए, और फिर इकोनॉमिक इश्यूज में कि रेवेन्यू को कम किया जाए। इस तरह की जो सारी डिमांड्स थी, दीज वर द अर्ली ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडरेट्स, और साथ ही साथ में creating awareness also about some of the unjust practices that were being done by the Britishers. ठीक है, ये सारी चीजें थी. Then comes the extremist. So what were the ideas of extremist? ठीक है, both are the part of Indian National Congress, that was the Indian national level organization. It was established at that time. ठीक है, moderates were early leaders, but some of the leaders, they became more dissatisfied with their making demands and petitions to the government. So these were extremists. So what was their viewpoint of extremist? Hanji, yes beta. What was the viewpoint of extremist leaders, or they are also called radical leaders? And there is some difference between revolutionary and radicals. ठीक है, so revolutionary तो instant change चाहते थे, ठीक है, but they were radical in their views. हाँ जी, so what was their viewpoint? Extremist. हाँ जी बेटा. Yes Janvi. हाँ जी, keep your video on बेटा. हाँ जी जानवी. यस बेटा. Yes, ma'am. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders like Bankim Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were the radical leaders. They criticized the moderate for their politics of prayers. They emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. They also opened that people must fight for Swaraj. And Tilak and Bal Gangadhar Tilak also raised the slogan that it's my birthright and I shall have it. Yes. So extremists, they were against the moderate policy of these moderate leaders. Moderate policy, making petitions, making demands for the government, from the government, कि they will fulfill their demands. But rather they want to take their own decisions on their own. कि why we should give autonomy to these? We should be sovereign. ठीक है? We should fight for Swaraj. Swaraj, it is our birthright. ठीक है? Such a slogan was also given by Tilak, that freedom is my birthright. ठीक है? So they were in favor of fighting for Swaraj instead of making petitions to the government. और इसी के बाद next जो हम इसमें अब करेंगे discuss, that is partition of Bengal. अब now this was, अब उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि नेशनल लेवल पे जो लीडर्स हैं, दे आर कमिंग टुगेदर. ठीक है, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इज ऑल्सो डिवाइडिंग हिज इट्स ऑन पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज कर रही है. एंड एट दैट टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट वाज मेड इन 1905. सो नाउ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन व्हाई दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हाई इट वाज डन बाय ब्रिटिशर्स? किसने की थी? उस टाइम पीरियड के जो हम कह सकते हैं कि गवर्नर थे, है ना, वाइसराय थे उस टाइम पीरियड पे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने पार्टीशन की. एंड ही गेव हिज ऑन रीजन कि हमने इस बंगाल की पार्टीशन क्यों किया. नो डाउट इट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस उस टाइम पीरियड में, जो ब्रिटिशर के गवर्नमेंट अंडर जितनी भी टेरिटरीज थी या जितना भी उनके अंडर कॉलोनियल एरिया था, तो उसमें से ये बंगाल बिगेस्ट प्रोविंस था. ठीक है, और उन्होंने अपने रीजंस दिए. तो व्हाट वर द रीजंस और कॉजेज फॉर दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल? क्यों की गई बंगाल की पार्टीशन? These all points we have discussed, so we are just revising all these topics, है ना. तो समवट जो आपके माइंड में है अभी कि हमने क्या क्या पॉइंट इसमें डिस्कस किए थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों की गई थी. हाँ जी बेटा. हाँ जी दिया. What was the reason of why partition of Bengal was done at that time? हाँ जी. Yes, ma'am, because Bengal was too large and it was difficult to
for the Britishers to administrate efficiently. Okay, so this reason was the actual reason. This reason. No, ma'am. So what was the actual reason, or we can say it was hidden reason? Hanji. Ma'am, Britishers' motive was to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. Yes, कि मेनली जो उनका हिडन इंटरेस्ट था इसमें, ठीक है, उनका हम कह सकते हैं कि हिडन इंटरेस्ट था, वो क्या था? टू डिवाइड द पीपल, है ना? उसमें उनका इंटरेस्ट था कि डिवाइड कर देना। ईस्टर्न पॉपुलेशन में मुस्लिम ज्यादा थे, है ना, और इधर हिंदू ज्यादा थे, वेस्टर्न जो बंगाल था, तो उनका मेन था कि उनको डिवाइड कर देना। और साथ ही साथ में जो बंगाली लीडर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस भी कम हो जाए। सो दे गेव सच एज लॉर्ड कर्जन, ही डिवाइडेड दिस बंगाल and he gave his own reason, and he argument kya the, because Bengal is largest province, so it has become very difficult to administer such large province, so that is why we are dividing for our convenience, so that we can easily administer this region, ताकि जो भी यहाँ पे communication हमारा है या जो हमारे administration हमने करना, तो वो easily हो सके। But it was hidden motive कि they were, instead of removing non-Bengali areas from the province, उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये देखा कि इस साइड मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको उन्होंने असम में मिला दिया, और दूसरा जो एरिया था उसको उन्होंने, जहाँ पे हिंदू, तो मेजोरिटी हिडन मोटिव क्या था? उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भी अलग कर दिया। बाद में इसी के बाद हमने देखा कि नेक्स्ट मुस्लिम लीग भी एस्टेब्लिश हुई, है ना, मुस्लिम लीग भी इसी टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हुई इसके बाद, और मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्टार्टिंग में सपोर्ट भी किया। जब वो बन गई तो उन्होंने इसके कहा कि बहुत अच्छा हुआ ये पार्टीशन होगी, हमें अलग से एरिया मिल गया। सो इट मींस उनका जो हिडन मोटिव था इसमें, हिडन जो इंटरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। कि वो एक तो चाहते थे कि जो बंगाली लीडर्स हैं, जो बंगाली लीडर्स मतलब जो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में जितने भी हिंदू लीडर्स हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है सारे, तो उनका एक तरह से मुस्लिम लीडर्स और ज्यादा आगे आएंगे, वो अपनी अलग से यूनियन बनाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इनको हम एक मोटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस वाज टू curtail the influence of Bengali politicians and to split these people. So this was their hidden motive. So that is why the partition of Bengal was being done. So what was its consequences? Now partition is being done, partition हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद consequences क्या हुए, लोगों का रिएक्शन क्या था, what was the reaction of all the people? अब उसमें मॉडरेट्स भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, कुछ रेवोल्यूशनरीज भी हैं, ठीक है, और उस टाइम पर भी मुस्लिम लीग नहीं बनी है ना। सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल और व्हाट वाज द कंसीक्वेंस ऑफ ऑल दीज इवेंट्स? हाँ जी परी। यस बेटा, हाँ जी परी। हाँ जी परी, व्हाट हैपेंड? यस मैम, एक बार प्लीज रिपीट करना, क्या पूछा आपने? Partition of Bengal is being done. They have given their administrative reason, but there was hidden reason also. Now partition is being done in 1905. So now what are the consequences of it? Consequences means what are the reaction of different people or the consequences? इसका result क्या हुआ? Yes ma'am. Yes ma'am. The people were crucial about this, that there was opposition, and so large public meetings were there and demonstrations were there, and a new movement was launched, which was Swadeshi movement, in which they established this movement against the partition of Bengal. Yes. So there were many demonstrations, there were many public protests, and there was Swadeshi movement. It was also started with and it was also called Vande Mataram movement, and in Andhra Pradesh. And then there were at this time some differences also arise between the moderate and extremist, है ना? Note Swadeshi movement में क्या था? They
दे अपोज्ड ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स को उन्होंने अपोज किया। और उन्होंने जैसे जो उनका स्वदेशी का स्वराज का तो था ही, उनका मोटिव तो था ही स्वराज, वी हैव टू फाइट फॉर स्वराज, तो उसी को उन्होंने और ज्यादा इसमें लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग्स वो सारी स्टार्ट कर दी, है ना। और इसी में कुछ लोग रेवोल्यूशनरी वायलेंस पे भी उतर आए थे, ठीक है। और इसी में उन्होंने कि स्वदेशी मीन्स वी हैव टू यूज द इंडियन मेड थिंग्स मोस्ट, ठीक है, तो उसको उन्होंने और ज्यादा इसमें चलाना शुरू कर दिया, जो लेटर ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी बाद में यही चीज फॉलो की गई थी, है ना। सो इसलिए रेडिकल्स और मॉडरेट्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, ठीक है, एक वो डिफरेंस आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और दूसरा, क्योंकि रेडिकल्स चाहते थे कि अगर हम इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, पब्लिक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, बट दे वर बिलीविंग इन मेकिंग डिमांड्स, है ना, कि हम गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे और इट विल बी एक्सेप्टेड, तो वो कहते हैं कि एक्सेप्ट हो जाएगी। बट एक्सट्रीमिस्ट दे वर नॉट इन देयर फेवर, वो इसमें उनके फेवर में नहीं थे। तो इट मींस कि यहाँ पे इसके बाद 19 यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई, आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन और स्वदेशी के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट वो चलाई गई, मॉडरेट्स दे ऑल मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट ऑल वर अगेंस्ट दिस पार्टीशन, सभी अगेंस्ट में थे पार्टीशन के, बट देयर मेथड्स ऑफ क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज डिफरेंट, ठीक है। सो द रेडिकल्स, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, दे वांट टू use revolutionary measures, but moderates they want to use the moderate measures or peaceful means, ठीक है। तो it means these were the consequences, all participated but in their own way, ठीक है। Muslim Hindus all were in starting they were against this partition, but later on क्या हुआ 1907 में, ठीक है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका आपस में गैप था वो और ज्यादा होना शुरू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, है ना। तो रेडिकल्स और मॉडरेट्स ने अपना अलग अलग जो था वर्क करना स्टार्ट कर दिया, नो डाउट वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर्स रहे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना अलग अलग यहाँ से जो था वो उनकी प्लानिंग जो थी वो अलग अलग होनी शुरू हो गई। और इसी के साथ जो मुस्लिम लीग थी वो भी, एंड हु एस्टैब्लिश्ड मुस्लिम लीग, अब 1905 में पार्टीशन हो गई है, ठीक है, और ऊपर से इनके बीच में सबने अपना प्रोटेस्ट भी कर दिया, ठीक है। 1900 में तो स्प्लिट हुआ, लेकिन उससे पहले 1906 में, ठीक है, देयर मुस्लिम लीग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। देन हु एस्टैब्लिश्ड दिस मुस्लिम लीग, किसने एस्टैब्लिश्ड की थी, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था, पार्टीशन हो गई बंगाल की, ठीक है, स्टार्टिंग में तो सबने अपोज किया, बिकॉज सभी उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, कोई मुस्लिम की पार्टी नहीं थी, कोई हिंदू की पार्टी अलग अलग नहीं थी, है ना। तो जब उन्होंने ये पार्टीशन कर दी, एक एरिया में क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बन गया, ईस्टर्न एरिया, तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे दी कि यहाँ से आपके अलग इलेक्टोरेट्स होंगे, ठीक है, आपके यहाँ से अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और वो मुस्लिम लीडर्स ही चुने जाएंगे, और उनको वोट्स भी मुस्लिम लीडर्स देंगे, मुस्लिम ही देंगे। तो इट मींस यहाँ पे उन्होंने पार्टीशन करने की कोशिश की, और मुस्लिम लीडर अगर वो अब इलेक्शन लड़ेंगे तो पार्टी भी बनाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो कौन सी पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो किसने बनाई थी, हाँ जी दिया। मैम मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स। यस, मतलब जैसे रिच जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड हो गए या नवाब्स हो गए, तो उन्होंने इकट्ठे मिलके तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, ठीक है। और इसी में जैसे जो कांग्रेस, अगर हम कहें ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी, तो नो डाउट उसमें भी एलीट ग्रुप्स के मेंबर बहुत सारे थे, उसमें भी ये नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव नो डाउट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया थे, लेकिन उसमें भी हम कह सकते हैं कि ज्यादा एलीट मतलब रिच जो हम कह सकते हैं पर्संस, दे वर द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं, दे वर नॉट हैव मच टाइम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, है ना, उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता। जो रिच पर्सन है वही अपना थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो मोस्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी रिच एलीट मेंबर्स थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ इस मुस्लिम लीग को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वो भी क्या थे, रिच मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे, ठीक है। उसमें भी कई नवाब से जो इकट्ठे होकर उन्होंने ये पार्टी बनाई। और इसके बाद जो वहां पे काउंसिल बनी, वहां पे भी उनकी सीट्स रिजर्व की गई, ठीक है। और फिर थोड़ी देर तक इस तरह चला, लेकिन जो प्रोटेस्ट थे लोगों के, उस प्रोटेस्ट के बाद
जो बंगाल पार्टीशन किया गया था, इसको यूनाइटेड कर दिया गया था 1911 में बाद में, ठीक है। तो इतनी वो आई थिंक आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। तो लेटर ऑन इट वाज यूनाइटेड, बंगाल को भी रीयूनाइट कर दिया गया था। और जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, तो वो कांग्रेस वो भी बाद में आपस में कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट कर लिया, और मुस्लिम लीग उन्होंने भी कॉपरेशन एक साइन किया, उन्होंने टू ग्रुप्स थे, दे वर आल्सो रीयूनाइटेड इन 1915, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग उन्होंने भी आपस में लखनऊ पैक्ट कर लिया था, एग्री कर लिया था। अब ये सारी रीजन क्यों? बिकॉज ऑल दे वांट फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, है ना, कि पहले हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, आपस में उनके व्यूज अलग थे, लेकिन बाद में सभी इकट्ठे हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये भी सारे इन ब्रीफली एमसीक्यूज में सारी ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि when the Congress and Muslim League signed the, or which historic pact they signed, such as Lucknow Pact, है ना, then they decided to work together for our independence। और ये 1906 में मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हो गई, 7 में स्प्लिट हुई, बट अगेन 1915 में रीयूनाइट हो गए, है ना। देन मुस्लिम पैक्ट वो भी इसी टाइम पीरियड में ही, उसका भी ईयर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, रहने दो। लखनऊ पैक्ट वो भी साइन किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसी टाइम पीरियड में ही, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1911 या 15 तब यू रीयूनाइट कर रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में वन मोर थिंग वाज देयर दैट वाज हैपनिंग, और उसका इंडिया के ऊपर भी असर हो रहा था। दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट हैज बीन स्टार्टेड इन 1914। और जैसे कि ब्रिटिशर्स दे वर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें इन्वॉल्व थे, और इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उसका असर इंडिया पे तो होना ही था, है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की उस पे, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशन है कि पार्टीज बन रही हैं, फिर अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, कभी स्प्लिट हो रहा है, कभी वो रीयूनाइटेड कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक है। और इकोनॉमिक सिचुएशंस, जैसे जो एग्रीकल्चर, उस पे ज्यादा रेवेन्यू लगाया जा रहा है या प्राइसेस चीजों के ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें बनेगा, जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इकोनॉमिक और साथ साथ में जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी इंडिया की बनी हुई थी उस पे, ठीक है। सो हाँ जी, तो इसमें हम क्या पॉइंट्स बताएंगे? हाँ जी, तो रन्या, यस बेटा। Yes, ma'am. The First World War फर्स्ट वर्ल्ड वॉर led to a huge rise. ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हो गई थी, फ्रॉम 1914 टू 1918, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसका जो इंडिया की सिचुएशन थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। Yes, ma'am. The First World War led to a huge rise defense expenditure of the government, and the government in turn increased the taxes यस, on individual and business profits. यस। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स दे आर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वो इन्वॉल्व हैं तो इट मींस उनका अपनी अब लड़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा,
ठीक है। उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो वो सोल्जर्स हैं और ज्यादा सोल्जर चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट भी करनी है, उनकी जो डिफरेंट आर्म्स एम्यूनिशन है उसकी भी उनको पूरी अरेंजमेंट करनी है, उनकी उसके बाद फूड की भी अरेंजमेंट करनी, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफेंस के ऊपर जो उनका एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। और इंडिया जो कि एक कॉलोनी था, इट हैज टू बेयर ऑल द लॉसेस, जो भी एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा कहाँ से कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे तो ये तो है नहीं इनका, मतलब हमारे हम उनकी कॉलोनी है तो कोई फायदा हमारा तो सोचना ही नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, जो यहाँ से ज्यादा बेनिफिट हो सकता था दे ट्राई, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इंपोर्ट्स भी हमारे बढ़े, नो डाउट किसी कुछ हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा भी हुआ है ना, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को उस टाइम पीरियड में फायदा हुआ, कुछ इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट भी यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वॉर एक्सपेंडिचर जो उनका बढ़ रहा था, ठीक है, उनको जरूरत थी वहां पे। ऊपर से यहाँ से सोल्जर्स को भी वो जबरदस्ती रिक्रूट कर रहे थे, ठीक है। तो इस सारी इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई थी, इसके हम ये पॉइंट्स जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा स्टडी करके आना। ओके, थैंक यू बेटा।